You're listening to the Quince podcast. It's a power tussle between the old and the new in Rajasthan, and the bone of contention is the seat of the Chief Minister. After almost 2 years of a simmering internal rift in the Congress's Rajasthan unit between the Chief Minister Ashok Gehlot and the Deputy Chief Minister Sachin Pilot over the post, the feud has come out in the open over the weekend. Pilot, who's been camping in Delhi after an open revolt against Gehlot, skipped a legislative party meeting on Monday that had mandated the presence of all members. He also claimed to have the support of 30 MLAs, which, if true, could reduce the Gehlot-led government down to a minority. On the other hand, a little over 100 MLAs arrived at Chief Minister Ashok Gehlot's residence on Monday to prove the government's majority in the 200-member assembly. The two leaders had been at loggerheads since 2018 after Gehlot got a third shot at being the Chief Minister of the state, even as Pilot had hoped that it'd be his turn now. But what aggravated the political crisis between the two now? Will Rajasthan see a repetition of what happened in Madhya Pradesh with the fall of the Kamal Nath-led Congress government? Will the Gehlot government be able to withstand the crisis, or will Sachin Pilot bring it down? You're listening to The Big Story, the podcast where we dissect the headline-making news for you. And I'm your host, Shorbari. What appears to be the tipping point in this recent political crisis is a summoning letter for Deputy Chief Minister Sachin Pilot to appear for questioning in an investigation into the alleged attempts to destabilize the Rajasthan government. The said investigation that is being conducted by the Rajasthan Police's Special Operations Group, or the SOG, had begun during the Rajya Sabha elections earlier in June, when the BJP was accused of trying to poach Congress MLAs ahead of the contest for 3 seats in the upper house of the parliament. The SOG, which recently arrested 2 individuals for allegedly trying to bribe Congress and independent MLAs with rupees 20 to 25 crores each, also lodged an FIR stating tapped phone conversations that mentioned the infighting between the deputy and the chief minister, and how the deputy chief minister said he wanted to be the CM. As the Home Minister in the state of Rajasthan, Gehlot is in charge of the SOG, and the summoning letter sent to Pilot seems to have been the last straw. In a bid to amend the situation, Gehlot also tweeted on 12th July, and I'm quoting his tweet here, quote, "Notices have been sent to the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, the Chief Whip, and some other ministers and MLAs for recording their statement in connection with the Congress legislator party's complaint to the SOG over horse trading by the BJP leaders. The manner in which it has been misrepresented by sections of the media is not appropriate." End quote. But the situation had far gone out of hand by then. Aditya Menon, the Quint's political editor, says that Pilot supporters have been claiming that he's been wronged, humiliated and undermined in the Gehlot government. एक बात इसमें गौरतलब ये है कि सिंधिया और पायलट के बगावत में एक बड़ा फर्क ये है कि नंबर्स जो हैं वो सिंधिया के फेवर में थे। 3-4 एमएलए, सिर्फ 7-8 एमएलए की बात थी जो सिंधिया ने अपने तरफ खींच लिए और सरकार गिरा दी। सचिन पायलट के लिए मुश्किल इसलिए भी हुई क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में तकरीबन 20-25 एमएलए का फर्क है, तो इस वजह से वो चाहे कितना भी खींच लेते, सरकार गिराना बहुत मुश्किल था। और अशोक गहलोत थे भी काफी दिग्गज नेता जो जैसा संजय सर बता रहे हैं, उन्होंने भांप लिया कि ये पूरी मुहिम चल रही है और उन्होंने इस चीज को प्रेसिपिटेट कर दिया। Soon after the feud came out in the open, Pilot went incommunicado, and Congress deputed senior leader Randeep Surjewala to resolve the crisis, pointing out that the Congress leadership has spoken to Pilot a number of times since the political crisis spilled over. Surjewala said that if anyone has any problem, they must come forward and mention the issue on the party forum and the party will resolve it. He also said that the doors for Deputy Chief Minister Sachin Pilot and his aides were and will remain open. Yet Pilot stayed away from the legislative meeting. But even as Congress scrambles to reconcile the two sides now, the power tussle between Gehlot and Pilot is one that has been festering for a while without an end. Gehlot is a senior Congress leader. He's been the chief minister 2 times before, but after the Congress's terrible defeat under him in the state elections of 2013,
Pilot was made in charge of the Rajasthan Congress unit, bringing about what many would say a generational shift in the party leadership in the state. But even as the Congress won the 2018 elections, a decision was made to make Gehlot the chief minister in view of the impending Lok Sabha elections and the party's wafer-thin majority in the assembly. And the political differences between them have been brewing since. Rahul Gandhi's resignation as the Congress president that came in 2019 further solidified the power tussle between the old guard and the new. Case in point would be the last crisis that the Congress faced in Madhya Pradesh in the Jyotiraditya Scindia versus Kamal Nath showdown. If you remember, Scindia's defection to the BJP had created a split in the party which led to the collapse of the Kamal Nath government. And many are pointing out the similarities between the rebellions of the younger leaders in the state, including Scindia himself. In a tweet, Scindia commented, quote, "Sad to see my erstwhile colleague Sachin Pilot too being sidelined and persecuted by Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot. Shows that talent and capability find little credence in the Congress." End quote. But how did the differences between the old guard and the new arise in the first place, and why has it not been settled so far? Aditya highlights some points about the internal dynamics of the Congress that has led to the current power tussle. काफी हद तक जो पार्टी का जो न्यू गार्ड या यंग गार्ड है, उनकी जो क्लाउड थी, उनका जो इन्फ्लुएंस था, वो कुछ हद तक राहुल गांधी के फॉर्चून से के साथ जुड़ा हुआ था। तो जब तक राहुल गांधी पार्टी प्रेसिडेंट थे, तो चाहे सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू हो, उन सबको लग रहा था कि आज नहीं तो कल हमें अपना हक मिल जाएगा, भले ही हमें इंतजार करना पड़ा। और शायद इनको भरोसा भी राहुल गांधी ने ये दिलाया कि अभी आप सब्र रखें। उन्होंने ट्वीट भी किया था ना फेमसली कि पेशेंस, टॉल्स्टॉय या किसी को कोट करते हुए कि पेशेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू। तो अब तो चाहे सिंधिया हो, पायलट हो या सिद्धू हो, इन सबको ये लग रहा था कि ठीक है, हम 2-3 साल इंतजार कर लेंगे, लेकिन राहुल ने हमें भरोसा दिलाया है कि आज नहीं तो कल हमें जो हमारी महत्वाकांक्षा उसके मुताबिक हमें पोस्ट मिलेगा। लेकिन अब राहुल गांधी खुद रिजाइन कर गए, सोनिया गांधी पार्टी प्रेसिडेंट बन गई, और जो ओल्ड गार्ड के लीडर्स हैं, चाहे वो कमलनाथ हो या अशोक गहलोत हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, उन्हें कुछ हद तक मौका मिल गया कि ये जो एम्बिशियस यंग लीडर्स हैं, उनको धीरे धीरे थोड़ा सा स्क्वीज किया जाए, और स्क्वीज ना भी करे तो भी कम से कम उनको उनकी हैसियत दिखाई जाए, उनको उनकी जगह दिखाई जाए, और असर्ट किया जाए कि भाई यहाँ पर बॉस हम ही हैं और हमारी ही चलेगी, एक पैरेलल पावर सेंटर नहीं हो सकता। तो ये जो ओल्ड गार्ड का रीअसर्शन है, वो कुछ हद तक राहुल गांधी की गैरहाजिरी की आड़ में हुआ है, और इससे काफी सारे जो यंग लीडर हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। अब सिद्धू का एक मॉडल है कि सिद्धू ने फैसला किया कि वो फिलहाल कांग्रेस से रिजाइन नहीं करेंगे, वो पंजाब की राजनीति में बने रहेंगे, और वो एक इंटरनल फोर्स ऑफ चेंज बनकर फिलहाल कांग्रेस में रहेंगे, और बाद में चुनाव आने के 1 आध साल पहले फैसला करेंगे कि वो कांग्रेस में रहेंगे या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, या बीजेपी एसएडी के साथ हाथ जोड़ेंगे। एक और मॉडल है, वो है अपने प्रद्योत मानिक्य देवबर्मन का त्रिपुरा में। उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, एक अलग रीजनल आउटफिट बना देंगे, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो वो उनका फैसला था। एक तीसरा मॉडल है डॉक्टर अजय कुमार का मॉडल झारखंड में। उन्होंने फैसला किया कि वो भी बीजेपी नहीं जाएंगे और कांग्रेस से ही मिलती जुलती एक सेकुलर पार्टी यानी आम आदमी पार्टी से हाथ जोड़ लेंगे। तो सिंधिया अकेला मॉडल नहीं है यंग लीडर्स के लिए, ये 3-4 अलग मॉडल भी हैं। पार्टी के अंदर रहकर अपना एक डिसेंट रखना जैसे सिद्धू ने रखा, या फिर किसी और पार्टी में शामिल हो जाना, या अपनी पार्टी फॉर्म कर लेना जैसे डॉक्टर अजय कुमार और प्रद्योत माणिक्य ने किया। तो अब ये देखने वाली बात है कि सचिन पायलट कौन सा रास्ता अपनाते हैं। Yet it may not be an exact repetition of the events. Firstly, because Scindia wasn't eyeing the chief minister's post like Pilot is, and also because of how the numbers are stacked up in the state assembly. Aditya explains it. तो 2 अलग अलग इसमें वर्जन निकल रहे हैं। एक वर्जन है गहलोत के सपोर्टर्स का जो कह रहे हैं कि 114 प्लस एमएलए हमारे साथ हैं, और दूसरा वर्जन है सचिन पायलट के सपोर्टर्स का जो पहले कह रहे थे कि 30 एमएलए हमारे साथ हैं और अब कह रहे हैं कि 25 एमएलए हमारे साथ हैं। जाहिर सी बात है जो सत्य है वो इनके कहीं बीच में है।
एक फिगर हमने अभी सोशल मीडिया में देखा, वो है 102 कांग्रेस एमएलए अशोक गहलोत के मीटिंग में शामिल हुए हैं और 7-8 इंडिपेंडेंट एमएलए का इन्हें सपोर्ट मौजूद है। अगर बस 100 हाफवे मार्क है राजस्थान की 200 के स्ट्रेंथ वाली असेंबली में, तो जैसे ही ये 100 का आंकड़ा पार हो जाता है, अशोक गहलोत किसी भी डेंजर में नहीं है। जहां तक सुनने में आ रहा है 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। इंडिपेंडेंट एमएलए और भारतीय ट्राइबल पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए की मदद की वजह से 100 का आंकड़ा अशोक गहलोत को पार करने में शायद दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये बात रही आंकड़ों की। अब दूसरी बात है कि सचिन पायलट को अब लुभाने के लिए कांग्रेस क्या कदम उठा रही है और क्या नहीं। तो इसमें भी दो मत निकल के आ रहे हैं। एक है कि खासकर जो राहुल गांधी और उनके करीबी लोग हैं, उनका ये मानना है कि किसी भी तरह से सचिन पायलट को पार्टी के अंदर रखा जाए। लेकिन कुछ और सपोर्टर्स, खासकर जो ओल्ड गार्ड के हैं, उनका ये मानना है कि अब देखिए, कोई एक बार ऐसे बीच कोविड क्राइसिस में आपने इस तरह से सरकार को गिराने की कोशिश करी है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हम आपसे बात नहीं करेंगे अब। तो ये दो व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं। अब एंड में क्या होता है ये देखने वाली बात है। When the Congress split in two factions in Madhya Pradesh, the party had accused the BJP of horse trading. And as the crisis blows out in Rajasthan right now, again the party has levelled allegations against the BJP of trying to weaken the government. The timing of the IT raids on Gehlot's aides' residences and offices seems to have also given the accusation some credence. But what is the BJP's role in all of this? Does it have a clear plan here? The Quint's editorial director Sanjay Pagalia weighs in. देखिए, अब इसमें 2-3 क्विक पॉइंट मैं रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक क्रेडिट देने का सवाल है, देखिए उनकी एसओपी साफ है कि कांग्रेस पार्टी को कभी भी कहीं भी किसी भी कीमत पर सरवाइव नहीं करने देना है, पनपने नहीं देना है। इतना बड़ा गैप होने के बाद भी राजस्थान में सरकार गिराने का इनका इरादा तो पहले से था। यहां पर अब सामने से जब सचिन पायलट नाराजगी दिखा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, तो बीजेपी ये गेम क्यों ना खेले। और खेलने में सिर्फ ये नहीं होता कि पॉलिटिकली एमएलए से बात करो, मुद्दा ढूंढ लो, पिछड़ेपन का मुद्दा ले लेना, उस पर पार्टी छोड़ करके आ जाना, कुछ नहीं। इनकम टैक्स रेड की तरफ से हेल्प की जा रही है। अब क्या होगा, बीजेपी की समस्या यहां पर क्या है, क्या वो जो आएंगे तो उसको बीजेपी मुख्यमंत्री बना देगी क्या उनको, सचिन पायलट को? इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत, पूनिया जी उनके अध्यक्ष, इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया इस घटना को कैसे देखेंगी? तो केंद्रीय आला कमान जो बीजेपी का है, उसके पास कोई क्लियर प्लान है क्या कि वहां पर करना क्या है? लेकिन बॉटम लाइन क्लियर है, कांग्रेस की सरकार जो एआईसीसी से चलती है, जिसके नेता अशोक गहलोत हैं, वो अगर हटते हो और उसमें बीजेपी का योगदान होता हो तो बीजेपी बेशक योगदान देगी, बिल्कुल योगदान देगी। तो बीजेपी अभी तक, बीजेपी का अपना ऑपरेशन होता ना तो वो इस तरीके से प्ले आउट नहीं होता। बीजेपी का ऑपरेशन 99.9% परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट होता है। ये प्लान सचिन पायलट का था, उनकी नाराजगी का था। बीजेपी अब उसमें आकर के सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। जहां तक पार्टी टूटती है, बीजेपी सपोर्ट क्यों ना करे। फिलहाल ये एफर्ट वहां तक लिमिटेड है। अब आ जाते हैं नंबरों पर। देखिए, जैसा आदित्य ने कहा, नंबरों की अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें साफ हो रही हैं। कल डायरेक्ट बयान नहीं था सचिन पायलट का। सचिन पायलट के ऑफिस के बयान के आधार पर यह कोट हुआ कि उनके पास 30 लोग हैं। ये बात तो पायलट साहब ने कभी खुद तो बोली नहीं थी, लेकिन चूंकि ये 30 को अब एक बेंचमार्क मान लिया गया है, तो आज की जो बैठक हुई है एमएलएस की, उससे ये तो साफ हो गया है कि 30 गैर हाजिर नहीं है, 107 की पार्टी है जो खुद की इनकी पार्टी है। तो इसका मतलब अगर ये 77 पे रुकते तो हम कहते कि हाँ 30 आदमी वहां नहीं पहुंचे। 90 का आखिरी फिगर था रिपोर्टर्स के द्वारा, इनका क्लेम 102 का है। हो सकता है इनके क्लेम के बाद भी अगर चिट्ठी देने की नौबत आती है राज्यपाल को जाकर के और 102 या 105 या 110 का भी आंकड़ा देते हैं, एमएलएस को तोड़ने का गेम उसके बाद भी चालू रह सकता है। इसके लिए होशियार हो जाइए। But will Sachin Pilot defect to the BJP like Sindhya did? That's the question on everybody's minds now, and Mr. Pugalia says that while Pilot's ideology doesn't seem to resonate with the BJP's, there are many leaders who settled into the BJP despite their differences.
जहां तक पर्सनल व्यक्तिगत आइडियोलॉजिकल बिलीफ का सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि जिस सामाजिक आर्थिक और उम्र का उनका बैकड्रॉप है उसको देखते हुए कि वो आइडियोलॉजिकली बीजेपी में फिट होंगे। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस आइडियोलॉजी में फिट न होने वाले बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ करके या दूसरी पार्टियां छोड़ करके या तो चले गए या बीजेपी से रिश्ता बना लिया। बीजेपी की अनटचेबिलिटी पिछले जन्म की बात थी। बिल्कुल। बीजेपी इज अ न्यू कांग्रेस, मच मोर एग्रेसिव कांग्रेस, much more opportunistic to strike any alliance with anyone. BJP has acquired or gained that stature where religion और communal secular, ये तीन लफ्ज ही होते हैं ना डिफरेंशिएशन के, वो खत्म हो चुका है। तो सचिन पायलट बीजेपी से डील नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि आप इस पॉलिटिक्स में हैं पावर एक्वायर करने के लिए, और पावर एक्वायर करने के लिए अब कांग्रेस बीजेपी का कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है मेरे मन में कि वो ज्वाइन करेंगे या अपना आउटफिट बनाएंगे, ये क्लैरिटी मुझे अभी खुद को नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये डिक्टेट करेगा नंबर के गेम से। अब क्या होगा, अगर आज मीटिंग में नहीं गए तो या तो आप मनाने की कोशिश करो, इनको सैक ना करो, खुद छोड़ेंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस चाहेगी कि इनको अगर मैं सैक कर देती हूं एज अ पार्टी तो ये तो इनकी मेंबरशिप रह जाएगी और ये फ्री हो जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे सामने वाला आउटफिट या अपना आउटफिट बना लेंगे। तो लेकिन कांग्रेस ये कॉस्ट पे कर देगी। जहां तक कांग्रेस आ गई है अब उसमें पार्टी में रखने का मतलब नहीं होगा, तो वो सैक करेंगे। लेकिन क्या यहां से कोई रीथिंक हो सकता है? सुरजेवाला को उम्मीद है कि हो सकता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो 48 घंटे में बात करने की कोशिश करते रहे लेकिन बात नहीं हुई। ये भी देखिए बड़ा टेलिंग है कि हाईकमान के साथ सचिन पायलट की बातचीत कब तक हुई, कैसे हुई, कहां जाकर के टूटी, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बताता है कि हाउ थिंग्स वर्क इन दिल्ली। If you like listening to this episode, please subscribe to the Big Story playlist for episodic updates. We're live on Apple, Google Podcast, Spotify, JioSaavn, and most of the other popular podcast streaming platforms. For other podcasts, please log on to the Quint website and check out the podcast section. For any feedback, shoot an email to podcasts@thequint.com. Thanks for listening. Log on to the Quint's website and check out our other podcasts.